جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آواز صاف آ رہی ہے؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اچھا جی, ہم پڑھ رہے تھے ربر کے حوالے سے. ربر میں ہم نے پڑھا تھا ایک منٹ. جی, نبر میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم کسی آواز کو ریز کرتے ہیں کسی حرف کو جوڑنے کے لیے, اس کو ہم نبر کہتے ہیں. یعنی صرف والیوم کا بڑھنا جو ہے وہ نبر کہلاتا ہے. نبر کی یہ 5 ہیڈنگز ہم نے صرف ابھی نام پڑھے. ہم نے پہلی ہیڈنگ کو ڈسکس کیا, اور پہلی ہیڈنگ میں کیا تھا کہ تشدید والے حرف پر اگر ہم وقف کریں گے تو کس طرح سے ہوگا. اگر یہ کلکلا حرف ہوتا تب تو ہم تصادم پلس تباعد کر کے تشدید کو واضح کر لیتے اور کہتے کہ یہ کلکلۃ الکبریٰ بھی ہو رہا ہے اور تشدید بھی واضح ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی نان کلکلا حرف اگر آتا ہے, یعنی جس کے اوپر کلکلا نہیں کیا جاتا, تو جب اس کے اوپر تشدید ہو اور اس پر ہم وقف کرنا چاہیں تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم تشدید کو کیسے واضح کریں, کیونکہ دونوں ہی حرف تصادم سے ادا, دونوں ہی حرف ساکن ہو جائیں گے جو کہ تصادم سے ادا ہوں گے, اور دو ٹائم بھی تصادم ہم کر لیں تب بھی ہم تشدید کو واضح نہیں کر پائیں گے. اس لیے علماء نے ایک رول اپلائی کیا, اور اس رول کا نام تھا نبر. اور نبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی تشدید والے حرف پہ وقف کریں گے تو ہم اس کی جوائننگ میں, جب ہم پیچھے والے حرف سے جوائن کر رہے ہوں گے, اس وقت ہم آواز کے والیوم کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ تشدید واضح ہو جائے. جیسے شکن کو اگر ہم میں وقف کرتی ہوں تو پڑھوں گی شک شک, تھوڑا سا بڑھا دوں گی, کیونکہ یہ صرف 2 لفظ ہیں تو شاید آپ کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا. یہاں پر 3 لفظ ہیں, یا غل, غین اور لام کے درمیان آواز کا والیوم بڑھایا میں نے. یا غل, اگر میں نہیں بڑھاتی والیوم تو پڑھتی یا غل. صحیح ہے. اب میں نے والیوم بڑھایا تو آواز اب نبر کیسے ہوا, یا غل فقل فقل. ٹھیک ہے. اگر والیوم نہیں بڑھاتی تو یہ ہوتا فقل. یہ فرق محسوس ہو رہا ہے. اگر یس ٹیچر اب ہو رہا ہے. پہلا میں پڑھوں گی بغیر نبر کے, دوسرا پڑھوں گی نبر کے ساتھ بغیر گیپ. ایک بات آپ سے, ایک منٹ پہلے پڑھ لوں. مستقیم بغیر نبر کے, مستقیر مستقیر, مستمیر مستمیر. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. عجیب پوچھیے آپ سوال. مس میں مجھے یہ پوچھنا ہے, اگر جہاں بھی ہم تشدید والے حروف پہ وقف کریں گے تو کیا ہم نبر کریں گے؟ جی, جہاں بھی ہم تشدید والے حرف پہ اگر ہمیں وقف کرنے کی صورتحال پیش آ گئی تو ہم نبر کرتے ہوئے ہی وقف کریں گے تاکہ ہمارے والے کو پتہ. کلکلا حروف ہوں گے تو پھر کلکلا حروف ہوں گے تو وہاں تو آلریڈی ایک رول اپلائی ہو رہا ہے نا, تو صادم پلس تباعد, وہاں پہ نبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تشدید واضح ہو رہی ہے نا. ٹیچر مجھے ایک بات پوچھنی تھی, کیا ہر حروف کلکلا حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں سب پر نمبر ہوتا ہے کیا؟ ان پہ اگر آپ وقف کر رہی ہیں, وہ آخری حرف ہے کسی بھی کلمے کا, تو پھر آپ اس پہ نبر کریں گی. درمیان میں اگر وہ کہیں پہ بھی آ رہے ہیں تو ہر جگہ نبر نہیں ہوگا. کیا ہیڈنگ درمیان میں صرف اور واؤ کے بارے میں. واؤلین پر ہوتا ہے نا. واؤ لین نہیں, یا اور واؤ لین کی یا اور واؤ پر. یا اور واؤ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, پتا نہیں مجھے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی کہ تشدید والے حروف پہ وقف تو سمجھ میں آ گیا کہ تشدید سے پہلے والا جو بھی حرف ہوگا اس پہ ہم نبر کر دیں گے. ہونے دیں, آپ ابھی سے گھبرانا شروع ہو گئی ہیں. ٹاپک پڑھنے بہت دیں, گھبرا رہی ریلیکس ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. آپ آگے پورا کمپلیٹ کرنے دیں, مجھے آج صفات بھی پڑھانی ہے. اچھا, یا اور واؤ پر تشدید, ایسے واؤ اور یا کو ادا کرنا جن پر تشدید ہوگا کیا. جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں, اگر آپ بغیر نبر کے کریں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ ان کو یا تو یا مد بنا دیں گے. قوامون, کیا یہ واؤ مد ہے؟ سوری, کیا یہ واؤلین ہے؟ واؤلین تو نہیں ہے نا. لیکن اگر ہم نبر نہیں کریں گے نا تو پڑھیں گے کاؤ, پورا واؤ بن جائے گا اگر آپ اس طرح پڑھیں گے. قوامون کوا ہے نا واؤ, ایسا لگے گا کہ یہاں پہ واؤلین تھا. اس طرح اگر اس میں نبر نہیں کریں گے تو پڑھیں گے القوتا. دیکھیں نہیں, منہ جو ہے یہ واؤ مدہ ہے. کیا منہ جو ہے واؤ مدہ ہے, واؤ پہ ساکن ہے کیا؟ منہ تو واؤ مدہ ہے, اس کی بات کر رہی ہوں میں تشدید والی.
सही है। अल कुव्वता में भी अगर आपने नंबर नहीं किया तो ये वाव मद्दा की तरह पढ़ा जाएगा, अल कुव्वता ऐसे लगेगा। अल हय्या भी ऐसे ही लगेगा कि हई। और शरक़ियता, अब मैं डबर करके बता रही हूँ कैसे करेंगे। क़व्वामूना, यहाँ पर आवाज को रेज करेंगे इस जगह पर, क़व्वामूना, सॉरी कॉफ पुर करके, क़व्वामूना अल कुव्वता अल हय्या शिरक़ियता। सही है। अगर मैं नबर नहीं करूंगी तो पढ़ूंगी क़व्वामूना क़व्वामूना, और मैं नबर यानी करती हूँ वाव और या की आवाज क़व्वामूना। अल मिस अल हय्या जमाव और ठहराव अल को नबर हय्या। जी मिस अस्सलाम वाव और वालेकुम। आवाज अलग से मुझे सुनाई ये देती है पूछना नबर था, ये करते वक्त। ऑप्शनल होता है यानी कि हम नंबर एक करें या ना करें? एक करके सवाल करें प्लीज। ज़किया। जी करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये नंबर जैसे मैंने आज पहली दफा समझो पढ़ा, तो मैं ये ऑप्शनल है, ये करें या ना करें या करना ही करना है, ये मैं पूछना चाह रही थी। देखें इससे ना इससे तजवीद में खूबसूरती आती है। और अच्छा ये वो ठीक है। चीज है जो कि हर कोई, जैसे हर किताब में आपको नहीं मिलेगा ये। जी जी और ठीक। इसके लिए आपने जाके डिबेट भी नहीं करनी कि ये चीज होती है, क्योंकि हर कोई मानेगा भी नहीं है। लेकिन इससे अच्छा अगर खूबसूरती आती अगर है। कोई और आप नहीं देखें, कर रहा हाँ तो उसकी गलती काउंट नहीं करेंगे या करें या उसको पढ़ने देंगे, पढ़ता जाए वो, मतलब जो जैसे हम देखिए आप मेरी बात समझ लें कि ये चीज अगर आपने पढ़ ली ना, ये आपके लिए खूबसूरती के लिए आप पढ़ लें, लेकिन आप दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं करें। जो ओके तजवीज प्रॉपरली, जो तजवीज डिटेल के साथ पढ़ना चाहता है ना, तो वो ये चीजें पढ़ेगा। जब वो ये चीजें पढ़ेगा तो वो उसको खुद ही समझ आ जाएगी। और जो नहीं कर रहा, आप उसकी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करें। टीचर जैसे हम अगर हम बचपन में किसी को सुनते थे। पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर या कोई हमसे पूछ रहे हैं कुछ अगर सबक अगर हम किसी का सुन रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ ऐसे करते हैं, वो नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको टोके ना। देखें अगर किसी की लाहने खफी में आती है, अगर तो वो लाहने जली पर ही अटका हुआ है, तो फिर आप लाहने खफी क्या निकालेंगे? समझ आई? टीचर जैसे बचपन में कारी साहब या जो सानी जी आती थी वो कहती थी कि तशदीद पे जमाव और ठहराव के साथ करके निकले आगे, तो ये उसी का दूसरा नाम है नबर। नहीं, नबर जो है वो डिफरेंट चीज है। देखिए आप हर हर्फ पे हम नबर नहीं कर रहे हैं ना, हर तशदीद पे नबर नहीं कर रहे हैं। हम उस तशदीद पे नबर कर रहे हैं जो एक तो हर्फ आखिरी हर्फ है उस पर कर रहे हैं, दूसरा या और वाव पे कर रहे हैं। उसके अलावा दरमियान में कोई भी हर्फ आ रहा है, हम उस पे नबर की बात नहीं कर रहे। सही है। ठीक है। मिस ओके मिस मुझे भी नबर बता दें, जैसे और या की आवाज जब हम नबर करेंगे तो अलग से महसूस होगी ना? नहीं, नबर करने की वजह से, अब आप मेरी पूरी बात सुनिए। अगर यहाँ नबर ना किया जाए तो एक तो मद या तो मद या लीन का मुगालता होगा, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर वो मद समझा जाए सुनने वाले को, या लीन समझा जाएगा। दूसरी वजह यह है कि इन दोनों हुरूफ में नरमी है। अगर आप इस पे नबर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको दबा के पढ़ेंगे। जो अभी वो कह रही थी कि इस पर जमाव ठहराव के साथ जो कह रही है, तो उसको दबा के पढ़ने से इनकी नरमी की सिफत खराब हो जाएगी और ये गलत मखरज से और गलत तरीके से पढ़े जाएंगे। कव्वामूना इस तरह करके, या अल हय्या या की आवाज आएगी। समझ आ रही है? इस वजह से नबर किया जाता है ताकि तशदीद भी वाज़ेह हो जाए और इनकी खूबसूरती और इनकी हुरूफ की सिफात में भी कोई कमी ना आए। ठीक है, आगे चलते हैं। हुरूफ मद्दा के और बाद मिस अगर ये तशदीद आ जाए। जी और मिस अगर तशदीद के साथ अगर पेश आए तो फिर जब भी नंबर होगा, जैसे इसमें जबर है ना तशदीद के ऊपर। नहीं नहीं, जबर ज़ेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं तशदीद के ऊपर। ये किसी भी या और वाव पे अगर तशदीद आ जाती है तो फिर उस पे जी, नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे हम। सूरह मुज़म्मिल स्टार्ट करते हैं हम, हाँ तो या अय्युहल, हाँ जी, यानी या अय्यू। अय्युहल जी, हाँ, ये या देखो। अय्युहल। हाँ, बाकी लोग सुन रहे हैं, इनका या कैसा सुनाई दे रहा जाला वाले वाला या। है ना? जी ऐसा जाला सुनाई वाला। दे रहा है ना इनका वो या? अब देखें, इसको पढ़े नबर के साथ। अय्यूहा, अय्यूहा, नरमी और सिर्फ नबर के साथ।
अब पढ़िए अय्युहा 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 हाँ या अय्युहा या अय्युहा क्या बात, दबाना नहीं है, आवाज को रेस करना है बस, तो खूबसूरती भी आएगी और गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा वापस आ जाए हम अपनी इस पर। हर्फ मता के बाद अगर तशदीद आ जाए, ये हर्फ मत से मुशद्दद हर्फ के पहले हर्फ की तरफ मुंतकिल होते हुए किया जाता है। हर्फ मद्दा कहाँ है हमारे पास, ये रहा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ना तशदीद है, यहाँ पर लाम पे भी तशदीद है। दौलीन आपने देखा है ना, वो सूरत अल फातिहा का लास्ट वर्ड, जी जी तशदीद है यहाँ जी पर। जी लाम पे भी तशदीद होगा। तजदीद है, आमीन पे, दौलीन पे। पर वो नहीं है, हुई यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। ये हर्फ मद से मुशद्दद हर्फ की तरफ, यानी हर्फ मद्दा के बाद अगर कोई तशदीद वाला हर्फ होता है हर्फ मद्दा के बाद, तो देखें जब भी हर्फ मद्दा के बाद कोई तशदीद वाला हर्फ होता है ना, तो ये बड़ी वाली मद भी लगी हुई होती है साथ में। तो जब हम मद का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों लगी हुई है। तो ये जब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो तब भी हम क्या करते हैं कि हर्फ मद्दा, अब ये वाला मद्दा कितना लंबा खींचा जाता है, कौन बताएगा, कितने हरकत खींचा जाता है? टीचर Six count, six count. Six तक लाजिम कहलाता है, ये 6 काउंट तक जी। किया जाता है। क्योंकि मत के बाद तजदीद आ जाती है, तो आपने बताया था उसको 6 काउंट तक खींचते हैं। जी, बारकल्लाहु फीक। तो ये आपने लेवल 1 में मेरा ख्याल पढ़ा था। जी जी मुझे याद है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, मतलब दौलीन लंबा खींचती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब लीन जो है इसके ऊपर 6 काउंट वाला मद होता है। तो जब हम 5 पर पहुंचते हैं ना, 5वें हरकत पर, तो छठी हरकत से पहुंचते हम आवाज को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और लाम पे ठहराते हैं, ऐसे ऐसे करके। कोई बहुत माहिर कुरा होते हैं ना, आप उनको सुने, वो इसी तरह से नबर करते हुए पढ़ते हैं और इतना खूबसूरत लगता है उनका वलद दौलीन, बहुत अच्छे तरह से उसको वो अदा करते हैं इस नंबर के साथ। आप गौर कीजिएगा। इस हरम में जब वो नमाज होती है, जी चाहे तरावी हो, तो उसमें कितना ही लंबा, मतलब ये लोग खींचते हैं इसको ना। हाँ, लंबा तो 6 खींचते काउंट है। हैं, वो तो खींचना ही चाहिए। बाकी ये कि नबर भी करते हैं। आप नबर क्यों करेंगे जी। यहाँ पर, अगर यहाँ नबर ना किया जाए तो लाम साकिन का तसादुम होने की वजह से आवाज वाज़े नहीं होगी और कारी इस गलती की बिना पर जेर ही बस पढ़ता सुनाई देगा, तशदीद वाज़े नहीं, तशदीद सुनाई नहीं देगी। तो वलदौलीन ऐसे होगा, वलदौलीन, तो लगा के लाम पे तशदीद है, लाम पे तशदीद होने के लिए नबर करना हो जाता है यहाँ पर। अब वाज़े हुई ना लंबी तशदीद। तो ये है आपका नबर। तीसरी हेडिंग हमने पढ़ ली कि अगर हरफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ हो। हेडिंग्स रिवाइज करें, शाबाश। पहली हेडिंग क्या थी हमारी, अगर किसी भी हर्फ पर वक्फ करते वक्त, यानी किसी भी तशदीद वाले हर्फ पर हम वक्फ करेंगे जो कि नॉन मुबतला होगा, करेंगे तो नंबर होगा। हाँ जी। दूसरा क्या था कि अगर या और वाव पर तशदीद आ जाए, तशदीद की सूरत में नबर होगा। हाँ। और तीसरा क्या था कि हरफ मद्दा के बाद तशदीद का तशदीद होता है, पर किया जाता है। ठीक है। अब है किसी लफ्ज के आखिर में हरफ मद के बाद हमजा आ जाए, जैसे कि ये हरफ मद्दा है शई, हरफ मद्दा भी हो सकता है, हरफ लीन भी हो सकता है। यहाँ हरफ मद्दा और हरफ लीन दोनों शामिल है। तो ये देखें, ये हरफ लीन है शई और ये है अस्समाइन, शईइन और अस्समाइन। अब वक्फ करते वक्त किसी लफ्ज के आखिर में, अब इन पे जब हम वक्फ करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमजा सुनाई नहीं देगा। तो इस पर आप बल्कि वक्फ करते वक्त लिखते हैं किसी लफ्ज के आखिर में हरफ मद्दा के बाद हमजा हो और उस पर वक्फ किया जाए, ये होना चाहिए। तो जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे, शई, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे शई बगैर नबर के, तो हमजा तो सुनाई नहीं देगा। अस्समा साकिन हो जाएगा ना, साकिन तो हो जाएगा लेकिन गायब भी हो जाएगा।
सुनाई क्यों नहीं। झटका तो देंगे मिस ना यहाँ साकिन हमजा पर। साकिन करेंगे तो झटका दे देंगे, फिर नबर की क्या जरूरत आई? दे झटका। शई तो ये आपने क्या किया है, झटका किस तरह से दिया, आवाज का वॉल्यूम भी बढ़ाया है आपने, यहाँ आपने नबर किया नबर शई किया। जी, झटके के साथ आपने इस पे नबर किया है, आपने आवाज का वॉल्यूम भी बढ़ाया है। अस्समा, यहाँ पर समा पे कितने तकरीबन 4 हरकत आप लंबा कर रहे थे, तो तीसरी हरकत पर आपने जैसे ही चौथे हरकत पे पहुंच रहे थे आपने आवाज का वॉल्यूम बढ़ा के फिर झटके से रोक दी आवाज। शई अस्समा, ये है। नबर ना करने की सूरत में मतलब सुनाई ही नहीं देगा और एक हर्फ की तिलावत में बिला जवाज हज़फ कर देना एक बड़ी गलती है। बात समझ आ गई कि हर्फ मदा या हर्फ नीन के बाद हमजा हो और उस पर वक्फ किया जाए, तो फिर ऐसे सूरत में इस पर नबर किया जाएगा। फिर हमने पांचवी हालत देखने की हालत तस्निया में मखसूस अफ़ाल। तस्निया का माना क्या होता है, डुअल, दो दो, सही है। तस्निया का माना था दो का सीखा। ऐसे कुरान मजीद में सिर्फ 3 ही अल्फाज हैं, ये 3 ये आपको याद करने होंगे। ज़ाक़ा शजरता, ज़ाक़ा का मतलब होता है, ज़ाक़ा का मतलब होता है जाल दो। हाँ, ज़ाक़ा का मतलब वैसे जाल वाव क़ाफ ज़ौक़ का माना होता है चखना, और ज़ाक़ा जो है का मतलब ज़ाक़ा अगर अलिफ के साथ हो तो इसका मतलब होता है दो लोगों ने चखा। अशजरता, शजरा यानी शजरा यानी दरख्त को, तो बेसिकली ये दरख्त से मुराद यहाँ पे दरख्त का फल था, और ये वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की बात। थी। ज़ाक़ा शजरता, अगर मैं इसको ज़ाक़ा शजरता ऐसे ही पढ़ लूं, क्योंकि अलिफ तो यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, ये तो काफ शीन से मिल जाएगा, लेकिन अगर ये इस तरह से पढ़ा जाएगा तो इसका माना बदल जाएगा। माना ये हो जाएगा कि उसने चखा, सही है। ये तस्निया का सीगा खत्म हो जाएगा, इसमें से डुअल की बात खत्म हो जाएगी, माना में फर्क आ जाएगा। इसी तरह वस्तबक़ल बाबा, वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। इसमें सूरह यूसुफ में था ये सूरत, एक वो औरत जिन्होंने बरगलाया था और वो ये दोनों। तो इसमें अगर मैं बगैर नबर करे पढ़ूं तो फिर वस्तबक़ल बाबा, तो ये होगा कि वो बढ़ा, वो दोनों बढ़े का सीगा का माना खत्म हो जाएगा, तो उस पर नबर करना जरूरी है। इसी तरह वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि, यहाँ पर उन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत नमल में है। सूरतुल ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। उन दोनों ने कहा। सूरह यूसुफ और सूरह नमल वाले अल्फाज में तशदीद कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रही। ज़ाक़ा शजरा तो आ रहा है, तो हेडिंग पढ़िए जी हेडिंग पढ़िए, कहाँ है तशदीद, 5वीं हेडिंग कुरान नहीं ये अच्छा समझ में। 5वीं हेडिंग पढ़े हम, हालत तस्निया में मखसूस अफ़ाल। ये 5 फेल ऐसे हैं जिसमें जो तस्निया के सीगे के साथ कुरान मजीद में आए हैं, बहुत कम ही तस्निया के सीगे इस तरह से आए हैं, और आए हैं तो तस्निया का मतलब था डुअल, दो का जिक्र हो रहा है, जिसमें दो का जिक्र हो रहा है। कुरान में अरबी जबान में ना, जैसे उर्दू में क्या होता है, वाहिद एक और एक से ज्यादा सारे जमा के लिए, सही है ना, दो भी आएगा तो वो जमा के लिए होगा। अरबी जबान में दो के लिए अलग से एक सीगा होता है, अलग से एक वर्ड है, हर उसके लिए डुअल का सीगा होता है। तो वो डुअल का सीगा ये कहला रहा है, ज़ाक़ा, ये अलिफ जो है वो डुअल का सीगा बता रहा है। वस्तबक़ा वक़ाला, दो लोगों ने कहा, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह तो टीचर यहाँ पर वस्तबक़ा इसको खींचते हुए फिर बाप से मिलाएंगे। नहीं, खींचना नहीं है, खींचना नहीं है। इज्तिमाई साकिनैन का रूल, अभी हम इज्तिमाई साकिनैन पढ़ेंगे आगे, तो उसके रूल के हिसाब से ये अलिफ जो है वो गिर जाएगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको खाली गिरा दें और इसको मैं बता रही हूँ ना, नबर करेंगे ना, खौफ से शीन पे जाते हुए हम इसको रबर कर देंगे। ज़ाक़ा शजरता ऐसे, वस्तबक़ल बाबा, लंबा नहीं करना, सिर्फ आवाज को बढ़ाना है। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि, बात समझ आई? यस तस्निया जो आप बात बता रही हैं, हालत तस्निया डुअल, तो मिस ये दो अल्फाज को मिलाने की बात हो रही है, क्या है नहीं, मतलब किसी को डिफाइन कर रहा है ये? दो अशखास के लिए तस्निया का सीगा आता है। यहाँ जो आखिरी में अलिफ है वो दो का माना दे रहा है। यहाँ नबर न करने की सूरत में अलिफ हज़फ हो जाएगा।
اور معنی میں دو کے بجائے واحد بن جائے گا, جو کہ بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان میں یہ الف جو ہے وہ دو کا صیغہ بتا رہا ہے کہ اس میں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر یہ الف, آپ تھوڑی سی گرامر پڑھے نا تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ قاف الف زبر قا جو ہے یہ کہہ رہا, اس کا مطلب ہے دو لوگوں نے چکھا. واستبقا کا مطلب ہے وہ دونوں بڑھے, ورنہ تو یہ ہوتا اس طرح سے. دیکھیں ذاقا واستبقا, اور تیسرا لفظ کون سا ہے ہمارا؟ وقالا. وقال الحمد. اچھا اس یا تو پھر اس کو اس طرح کہیں گے کہ ایک حروف دیکھیں اس کو سمجھو. دیکھیں واحد جمع, ہمارے پاس واحد اور جمع ہوتے ہیں بس. ٹھیک ہے نا, جیسے میں کہوں کہ ایک کتاب, صحیح ہے, اور بہت ساری کتاب کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کتاباں, کتاب, بہت ساری کتاب. اردو میں کتب ہو جاتے ہیں نا. کتب. ہاں, اب جب ہم عربی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور صیغہ ہوتا ہے تسنیہ کا. ٹھیک ہے, تسنیہ کا معنی ہوتا ہے ڈبل. صحیح ہے, ڈبل یا ڈوئل. صحیح ہے, دو کے لیے. اب اگر یہ کتابہ ہے نا تو یہ ہو جائے گا کتاب با کے ساتھ الف. کتابانی. ہاں, کتابانی. ٹھیک ہے, اور ہو جائے گا کتبن, کیونکہ عربی کا ہی لفظ ہے یہ کتاب, اس لیے اردو میں بھی یہی آتا ہے. اب کتابانی کا جو نور ہے نا کسی وجہ سے گر جاتا ہے, اور یہ جو ورڈ ہے نا خالی کتابہ یہ رہ گیا. تو یہ الف جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ دو کا صیغہ ہے. جیسے آپ نے یہ لفظ پڑھا ذاقہ, تو ذاقہ یہ تھا ذاقہ. ٹیچر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف مدہ بھی دو کو شو کرتا ہے؟ ذاقو نہیں, سارے الف مدہ دو کو شو نہیں کرتے. ذاقہ, اچھا ذاقہ, ذاقو. ٹھیک ہے, پھر دوسرا تھا ہمارے پاس, وہ کیا نام لفظ تھا, یہ تو ہم نے اسم پڑھا تھا, سوری یہ اسم ہے. اسم